Hello everyone, Neha Mam here. So in the last video we have discussed chapter number 6, safety and first aid. We have discussed how we can take the safety at our road, while walking at road, how we can take safety at our home, how we can take safety at playground, and how we can prevent a fire, and what are the simple ways of putting off fire. And now we have to continue the next topic, that is the first aid. So first aid, as I have told you, it is starting only. First aid, it is an immediate help that is given to the injured people. ये वो help है जो injured people को बहुत जल्दी दी जाती है before they are given a medical treatment by a doctor. इससे पहले कि वो medical treatment को भी उन्हें डॉक्टर दे या वो डॉक्टर तक नहीं रीच कर पाए, till they are not reaching the doctor, until they have not reached to the doctor, that first aid is the immediate help that is very must to give to the injured people, that can save his or her life. So it can save a life, it can relieve pain till the doctor arrive. जब तक डॉक्टर आते हैं तब तक वो आप रिलीफ देगा पेन को. It can prevent the condition of the victim for getting worse, और कंडीशन खराब होने से बचाएगा वो अगर आपने फर्स्ट एड दे दिया. फर्स्ट एड क्योंकि उससे ब्लड रुक जाएगा. अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, देन यू कैन टेक अ प्रॉपर, आप उसे डिटॉल से, एंटीसेप्टिक क्रीम से, ठीक है, आप उसे पेन क्लियर देंगे. देन यू कैन पुट अ बैंडेज. देन बिकॉज ऑफ दिस, इससे पहले कि उसका ब्लड और फ्लो करे, यू कैन प्रिवेंट it till doctor is not able to arrive, or you are not able to take to the doctor. So this is a very must and very necessary help that is given to the injured people. So cut and wound, if we have a cut and wound, then what we can do? If you have a minor cut and puncture wound, then it can be treated at home. अगर आपके माइनर सा कट हो गया है, ठीक है, तो आप, या वूंड हो गया, तो आप इसे अपने घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं. देयर इज नो नीड टू गो टू द डॉक्टर फॉर अ माइनर कट्स, because as you know the germs usually enter through the minor cuts and wound. लेकिन आपको ये पता है जो जर्म्स है हमारे कहाँ से एंटर करते हैं? अगर जहाँ से हमारे कट लग जाता है, माइनर कट्स हो जाते हैं, वूंड्स हो जाते हैं, खुल जाता है वो एरिया, वहाँ से ही आपके जर्म्स क्या होते हैं? एंटर करने लगते हैं. देन जर्म्स स्टार्ट एंटरिंग इट. सो यू शुड वॉश योर हैंड with soap and antibacterial cleaner to prevent from the infection, and then you have to wash the cut thoroughly with a mild soap and water. उसके बाद उस कट को माइल्ड सोप और वाटर से वॉश करिए. देन आप उस पर क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रेशर लगाएंगे अपने हाथ से, ठीक है, जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक जाए. देन यू हैव टू अप्लाई एंटीबैक्टीरियल ऑर्नामेंट. आपका जो भी एंटीबैक्टीरियल ऑर्नामेंट होगा, ट्यूब होगा, ठीक है, क्रीम होगी, आप उस पर अप्लाई करेंगे, बैंडेज लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक सैफ्रोमाइसिन, ठीक है. सो देयर आर मैनी एंटीबैक्टीरियल ऑर्नामेंट, सो यू शुड हैव एटलीस्ट वन ornament so that you can help yourself and others during your injury. Yes, and then you should clean bandage, you should put a clean bandage that will not stick to the wound, जो आपकी wound से चिपके नहीं, stick नहीं हो चाहिए. you have to remember this. and अगर आप देख रहे हो कि वो उसमें bleeding हो रही, bleeding stop नहीं होती है, अगर stop नहीं हुई bleeding, तो आप क्या करेंगे? टाइट बैंडेज उस वायर पे टाई करेंगे, जिसे बोलते हैं टॉर्निक्वेट. टॉर्निक्वेट आपने देखा होगा, जो आपका बैंडेज होती है, ठीक है, जो बैंडेज होती है, अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो आप क्या उस पर टाई करते हैं? टॉर्निक्वेट above the wound. Why? Because you have to stop the heavy bleeding. To stop the heavy bleeding you have to apply a tourniquet. and if the wound is deep, अगर कोई भी wound जो है वो बहुत गहरा है, deep है, तो victim should be immediately, it should be taken to the doctor before it can have any serious injury. सो नाउ इफ़ यू हैव अ स्प्रेन, अगर आपका छटका आ जाता है, स्प्रेन आ जाता है, ठीक है, तो स्प्रेन ये इंजरी है जो आपकी मसल्स में हो जाती है, जॉइंट, जहाँ से आपका जॉइंट मूव होता है वहाँ ये स्प्रेन आ जाता है, इंजरी हो जाती है. जैसे कि एंकल या आपका रिस्ट है, ठीक है, एंकल है, रिस्ट है, यहाँ आपका क्या हो जाता है? स्प्रेन आ जाता है. और स्प्रेन से क्या होता है? आपकी जॉइंट में स्वेलिंग आने लगती है और ये आपको पेन बहुत देता है, पेनफुल होता है. सो आपको क्या करना है? यू हैव टू नॉट मसाज द स्प्रेन एरिया. चाहे स्प्रेन आए वहाँ मसाज नहीं करना है आपको, वहाँ आपको आइस पैक लगाना है, ठीक है, जिससे स्वेलिंग आपकी कम हो जाए. उसके बाद आपको वहाँ ऑर्नामेंट लगाना है, क्रीम लगानी है जैसे कि आयोडेक्स, ठीक है. उसके ऊपर आपने क्रेप बैंडेज, आपको पता है, ठीक है, जो आपकी गर्म पट्टी होती है, क्रेप आपको बैंडेज उस पर बांधना है जॉइंट पे सपोर्ट के लिए, ठीक है. आपको लेकिन ट्राई नहीं करना है कि आप इंजर्ड बॉडी पार्ट को मूव करें. देन आपको जो भी विक्टिम है,
जैसे स्प्रेन आया है जिसकी पॉटी पार्ट पे, आपको जब तक वो डॉक्टर नहीं आ जाता देन यू हैव टू गिव द प्रॉपर ट्रीटमेंट by doing all these activities which I have just now told you, that you have to not massage, you have to put an eye peg, then you have to put an ornament like or the iotics move, and then you have to tie with a crepe bandage so that it should get a support. Okay, and then you have to not allow any of the injured part to move, and then you have to consult to a doctor. I hope you have understood how you can take prevention, how you can take the first aid when you got the sprain or your friend get a sprain. Nosebleed, if the nosebleed, this is very common. So when a nose bleeding take place, this is common during the summers as severe heat sometimes causes the blood vessel inside the nose to burst. ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं आपके नोज के अंदर वो बर्स्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको जो भी पर्सन है उसे नीचे बिठाना चाहिए चेयर पे. ठीक है, विद हैड हेल्ड बैक, उसका जो सिर है उसे आप हेड जो है वो पीछे कर दो. ठीक है, उसके बाद चेयर पे बिठा के आराम से उसे बिठा के उसका जो हेड है उसे थोड़ा सा पीछे कर दो. ठीक है, उसके बाद आप उस पर्सन से बोलो कि वो वेट अपना गीला हैंकी उसे हैंकरचिप या अपने हैंकी को वेट करके अपने नोज पे लगाए, पुट ओवर योर नोज. ठीक है, एंड देन अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, तब तक लगाए जब तक कि ब्लीडिंग रुक ना जाए. ठीक है, फिर आपको उस पर आइस पैक लगाइए. आइस पैक हो, अगर आपके पास आइस पैक नहीं हो तो आप आइस को बर्फ के पीस को, ठीक है, एक आपको पीस ऑफ आइस को आप एक क्लॉथ पे रखिए, कपड़े पे रखिए. ठीक है, या अगर नहीं है वो अवेलेबल तो आप वेट क्लॉथ ले लीजिए, आप जो अपनी नोज पे रखिए. ठीक है, एंड ऑन द बैक ऑफ द पर्सन नेक, और किसी भी पर्सन की नेक के पीछे रखिए. ठीक है, उस पर्सन से बोलिए कि वो डू नॉट टू ब्लो द नोज को ब्लो ना करे कुछ घंटों तक, कुछ आवर्स तक. इवन आफ्टर द ब्लीडिंग एज स्टॉप, जब ब्लीडिंग रुक भी गई है तब भी कुछ घंटों तक, कुछ आवर्स तक वो अपने ब्लो ना करे. अगर ब्लीडिंग नहीं स्टॉप होती है देन टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू द डॉक्टर. एंड दिस इज वेरी कॉमन, एंड यू शुड हैव the knowledge how you can take proper care before until we cannot reach to the doctor. Until we can consult to the doctor, you can take all these first aid. So an ice pack is made by keeping an ice cube on a clean handkerchief and folding it into the ball. ओके, तो आई पैक आपका कैसा बनेगा कि आइस की क्यूब आप एक हैंकरचिप पे लो और उसे आप फोल्ड करके, आप बॉल की तरह फोल्ड करके यू कैन पुट ओवर योर नोज. फ्रैक्चर, इफ यू गेट फ्रैक्चर, अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या होगा, फ्रैक्चर क्या होता है, क्रैक्ड और ब्रोकन बोन, या तो आपकी बोन जो हो गई वो क्रैक्ड हो गई है, ब्रोक हो गई है, देन इट इज नोन एज फ्रैक्चर. और आपको पता है सम ऑफ द साइन दैट द बोन माइट बी फ्रैक्चर्ड. और आपको कैसे पता चलता है, आपको कैसे फील होता है कि आपकी जो बोन है वो फ्रैक्चर्ड होगी, आपको वहाँ पेन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी इंजर्ड एरिया में, और जो इंजर्ड एरिया है उसकी शेप चेंज हो जाएगी और आपको डिफिकल्टी होगी मूवमेंट में. सो आपको यू कैनॉट ट्रीट अ फ्रैक्चर ऑन योर, लेकिन ये पता रखना आप फ्रैक्चर को अपने आप ट्रीट नहीं कर सकते. ठीक है, आपको मसाज नहीं करना है अपने इंजर्ड एरिया पे, आपको इमीडिएटली इमोबिलाइज करना है यूजिंग द मैगजीन और द न्यूज़पेपर. इमोबिलाइज का मतलब आपको सपोर्ट देना है, आपको मैगजीन या न्यूज़पेपर लगाना है जहाँ पे आपका फ्रैक्चर हुआ है, सपोर्ट देने के लिए स्ट्रेट करके. ठीक है, और आपको एक स्लिंग टाई करनी है विद द हेल्प ऑफ सम रोप और शू लेसेस. मतलब जहाँ देखिए जैसे ऐसे स्लिंग कहते हैं. ठीक है, यहाँ देखिए आप स्ट्रेट किया हैंड, उसके बाद इस पर आपने मैगजीन या न्यूज़पेपर का सपोर्ट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ स्लिंग, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, मूव नहीं करेंगे. टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर एज सून एज यू कैन, उसके बाद आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे जितनी जल्दी हो सके. सो यू शुड नॉट हैव द केयरलेसनेस, आपके पास आप केयरलेस नहीं हो. यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू शुड बी वेरी एक्टिव टू, इफ एनी accident took place then you should be very active in helping any injured person. burns, if anything burn, अगर कोई चीज़ जल जाता है, ठीक है, कैन बी कॉज बाय ओपन फ्लेम. ठीक है, कोई भी ओपन फ्लेम से आपके हाथ जल जाता है या कोई भी, नॉट ओनली हैंड, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स बर्न, देन हॉट पेन विद अ स्टीम विद अ बॉइलिंग वाटर एसेक्टर, और भाई केमिकल से जल गया है तो इन केस ऑफ द माइनर बर्न, अगर छोटा सा बर्न हुआ है तो स्किन टर्न रेड, जो वो रेड हो जाएगी. एंड ऐसा पेनफुल टिकलिंग सेंसेशन, टिकलिंग का मतलब आपको जलन होने लगेगी इन्फेक्टेड एरिया में. ठीक है, वी कैन गिव फर्स्ट एड ओनली इन केस ऑफ द माइनर बर्न्स. और ये याद रखते हैं अगर माइनर बर्न्स है तभी आप फर्स्ट एड दे सकते हैं. अगर आपका
severe panic, then you have to immediately take the patient to the doctor. So flow running water over the burn, जहाँ से जला है फ्लो पर रनिंग वाटर रखिए until the pain subside, जब तक थोड़ा सा पेन आपको रिलैक्स ना हो जाए जब तक आप रनिंग वाटर में अपना हैंड को क्या रखिए फ्लो करने, ठीक है, फ्लो रनिंग वाटर को फ्लो करने दीजिए ओवर द बर्न अंडर द पेन सबसाइड। फिर क्या करना है, आपको एक सॉल्यूशन बनाना है। उस सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन बनाना है, बेकिंग सोडा का, ठीक है। उसके अंदर आपको ऐड करना है हीप टी स्पून ऑफ इट इनटू द ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आपको टी स्पून फुल डालनी है, ठीक है। एक स्पून आपको टी की डालनी है, टी स्पून फुल क्या डालना है, हीप्ड का, एडिंग अ हीप टी स्पून फुल टू इट टू अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर क्या करना है आपको, उसमें जो कॉटन वूल है फिर आप रुई ले लेना, ठीक है। इस सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, डिप करोगे और अप्लाई करोगे इफेक्टिव एरिया पे, ओके। एंड दिस वुड गिव रिलीफ, इससे क्या होगा, रिलीफ मिलेगा जो भी बर्निंग सेंसेशन है। यू हैव टू नॉट अप्लाई एनी ऑर्नामेंट और क्रीम ऑन द बर्न एरिया, याद रखते हैं बर्न एरिया पे आपको कोई भी ऑर्नामेंट क्रीम नहीं लगानी है, ओके। नाउ on you remember that you have to dial the helpline number of the local police station or fire station in case of major burn। अगर मेजर बर्न हो गया है, बहुत ज़्यादा जल गया, तो आपको इमीडिएटली पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन पे आपको कॉल करना होगा हेल्पलाइन नंबर टू इन्फॉर्म दैम। अगर बर्न सीवियर है देन टेक द पर्सन द डॉक्टर इमीडिएटली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनिमल बाइट। इफ एनी एनिमल बाइट, अगर एनिमल बाइट हो जाता है तब क्या करते हैं, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। कि एनिमल बाइट कर लेते हैं, जैसे आपकी पैट्स होते हैं, यू आर हैविंग पैट्स एट योर होम, तो यू गेट बाइट by animals. Yes, so animal bite are caused by pets such as cats, dog, and so bites from stray dog कैन बी डेंजर। लेकिन याद रखना जो स्ट्रे डॉग होते हैं, ठीक है, जो बाहर के डॉग होते हैं उन्हें इंजेक्शन नहीं लगते हैं, ठीक है, उन्हें प्रॉपर मेडिसिन नहीं जाती है, तो वो डेंजरस। अगर आपको बाहर के जो डॉग हैं उन्होंने काट लिया है, ठीक है, तो वो डेंजरस होगा, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, ओके, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर इंजेक्शंस, so they are dangerous if they have bite us। so animal bite can also be cause a deadly disease called the rabies। और अगर animal bite से एक deadly ये आपको disease भी हो सकता है, that disease name is rabies। in case of the biting animal was not immunized, अगर आपका जो जिस animal ने काटा है अगर उसे immunized नहीं हुआ यानी कि वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो क्या होगा, आपकी यू कैन सफर फ्रॉम अ डिसीज दैट इज नोन एज रबीज, ओके। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी वूंड जहाँ काटा है वो पहले सोप और वाटर से आप क्लीन करो, ठीक है, उसका सलाइवा हटाओ, उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ जहाँ से काटा है, ठीक है, जहाँ से बिटन एरिया। so sprain or an injury in the muscle near the joint such as the ankle or wrist। so here we have completed our chapter, so exercises we will discuss in the next video। I hope you have understood the chapter, so just please follow it in your life also to prevent from different accident and take care of yourself and your family। so stay blessed everyone, thank you।